My lovely students, welcome to Pathological. In this session, we'll be discussing questions based on proportions that have been asked in SRCGBO examination. Start करते हैं सेशन अपना. And if you've not already subscribed to the channel, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ में टेलीग्राम चैनल पैथोलॉजिकल भी ज्वाइन कर लेना. ओके, सो थोड़ा बहुत बेसिक्स कर लेते हैं इन 1 or 2 minutes. So let us say 4 numbers A, B, C, D are in proportion. A, B, C, and D are in proportion. So in that case, that implies that A is to B is equal to C is to D. A by B is equal to C by D. अगर इंस्टेड 3 नंबर्स हमारे प्रोपोर्शन में है कि A, B and C are in proportion, then that implies that A is to B is equal to B is to C. And A by B is equal to B by C, which implies that B square is equal to AC. यानी A B C हमारे proportion में है. That also means that they are in GP. अगर 3 नंबर्स हैं तो A B C if they are in proportion, 3 numbers are in proportion, तो that implies they are in a geometric progression. Okay, so B square यानी middle term whole squared is equal to first term into third term. अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ. 2 numbers are given, third proportional we need to know. या फिर कभी पूछेगा मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा. Similarly, for proportionality, if there are two quantities, let us say quantities are A and B, and they are directly proportional, so we say that A is proportional to B for direct proportionality. If they are directly proportional. And A proportional to B implies that if A is increasing, so B will also increase. If A is decreasing, so B will also decrease. यानी कि A and B are linearly connected. A will be equal to some constant times B. Similarly, there can be inverse proportionality between two quantities. So if A and B are inversely proportional, A is proportional to 1 by B. In that case, if A is increasing, so B will be decreasing. If A will be decreasing, B will be increasing. And in such a case, the product A and B, A into B, is always constant. Okay. Questions करते हैं. So first question, if 0.8, 2.8 and 2.8, x are in proportion, then what is the value of x? अब यहाँ पे लिखे 4 numbers हैं, but second and third number same ही है, तो यानी कि 3 numbers which are in proportion. तो 0.8, 2.8 and x are in proportion. And question is asking about what is the value of x. So 2.8 whole squared will be equal to 0.8 times x. यहाँ से x हमारा आ जाएगा 2.8 into 2.8 divided by 0.8. डेसिमल से डेसिमल गया तो बच गया हमारा 28/8. 4 से 2 and 7, 2.8 into 7 by 2. ठीक है, तो 1.4 बचेगा. 1.4 into 7 will be 9.8. तो आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी 9.8, ऑप्शन डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 26 and 78 क्या होगा. थर्ड प्रोपोर्शनल तो 26 and 78 एंड देन थर्ड प्रोपोर्शनल. अगेन क्योंकि थ्री नंबर्स इन प्रोपोर्शन यानी कि दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. 26 into 3 78 है. 78 into 3 नेक्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा 78 into 3 विच इज 234. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ठीक है, सेम काम पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, बट वहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शन डेसिमल में थे, अदरवाइज 0.8 से 2.8 पे जा रहे हैं, तो रफली कितना है 0.8 इंटू 3 इज 2.4, तो 3.5 टाइम्स है, तो 2.8 टू 3.5 करेंगे. 2.8 इंटू 3 विल बी 8.4 और प्लस 1.4 9.8 विल बी आवर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल और x इफ x इंक्रीजेस बाई p%, तो y पे डिक्रीज कितना परसेंट होगा. सो x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी यानी कि x इंटू y विल बी कॉन्स्टेंट. ठीक है, सो पहले x इंटू वाई नंबर हमारा जो भी रहा होगा, सो बाद में क्या हुआ, x हैज इंक्रीज बाई p%, सो नाउ x विल बी 100 प्लस p बाई 100 और y मान लेते हैं y डैश हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो इक्वल कर दो भाई. दिस इज न्यू x और न्यू y इज y डैश, इक्वल कर दो. x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y डैश विल बी इक्वल टू y इंटू 100 अपॉन 100 प्लस p. क्वेश्चन पूछा है डिक्रीज कितना होगा. ठीक है, तो 100 अपॉन 100 प्लस p हो गया है y डैश हमारा y का. ठीक है, तो y डैश बाय बाय
दिस इज 100 अपॉन 100 प्लस पी। तो अगर इनिशियली 100 प्लस पी था, अब वैल्यू 100 हो गया, पी का डिक्रीज आया, बट कितना है, बेस क्या है, बेस 100 प्लस पी है, यानी कि परसेंटेज वैल्यू विल बी पी बाई 100 प्लस पी मल्टीप्लाइड बाई 100 डिक्रीज का। ठीक है, सो परसेंटेज डिक्रीज विल पी इंटू 100, यानी 100 पी अपॉन 100 प्लस पी, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, v is inversely proportional to the square root of m and m is inversely proportional to square of t, तो रिलेशनशिप बिटवीन v and t क्या होगा? v is inversely proportional to square root of m, तो v is proportional to 1 upon root m, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रूट m, या फिर कह सकते हैं कि v इंटू रूट m कॉन्स्टेंट है, एंड सिमिलरली m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ t, यानी कि m इंटू टी स्क्वायर, दैट इज कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो m को क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं, m कैन बी रिटन एज k अपॉन टी स्क्वायर, या रूट m को लिखा जा सकता है सम कॉन्स्टेंट, लेट अस से दैट इज k1 स्क्वायर रूट ऑफ k, k1 डिवाइड बाई t, रिप्लेस कर दो यहाँ पर। सो v इंटू k1 जो कि कॉन्स्टेंट है डिवाइड बाई t इज इक्वल टू सम अदर कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो बेसिकली दिस विल बिकम v अपॉन सम कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई सम अदर कॉन्स्टेंट, वो भी आपस में कॉन्स्टेंट ही तो होगा, मल्टीप्लाइड बाई t, तो v इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इन t, यानी कि क्लियरली v इज प्रोपोर्शनल टू t, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ओके, या सीधे अगर देख पाते, ठीक है, अगर देख पाते तो और आसान होता कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m, यानी कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट m, और m इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ t के, यानी कि m इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि सिंपली हमें प्रोपोर्शनलिटी ही निकालना है, तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m, और m प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी, 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो m की जगह 1 बाई टी स्क्वायर फिट कर दो, तो v प्रोपोर्शनल टू t आ जाएगा डायरेक्टली। बट ये समझना थोड़ा मुश्किल है, तो ये अप्रोच समझ में हमेशा आएगा। ओके, और क्योंकि हमारा आंसर अपने कांस्टेंट वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है, तो हम कांस्टेंट यहाँ पे एज्यूम भी कर सकते हैं कि मान लिया हमने कि कांस्टेंट इक्वल टू 1 ही है, तो v इज इक्वल टू 1 बाई रूट m, एंड m इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टी, पुट कर दो वही वैल्यू यहाँ पर, तो v विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ, रूट m की ही वैल्यू पुट करें 1 अपॉन 1 बाई टी, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू टी, v इक्वल टू टी आ जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो कांस्टेंट की वैल्यू हम 1 एज्यूम कर सकते हैं फॉर मेकिंग आवर क्वेश्चन सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, let p and q be inversely proportional and positive if p increases by 20%, तो q में डिक्रीज क्या होगा, अगेन p and q इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि p इंटू q प्रोडक्ट उनका कांस्टेंट होगा, और जब भी प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक वैल्यू जितने से इंक्रीज करेगा, सिमिलरली दूसरा उस हिसाब से डिक्रीज करेगा, तो p इज इंक्रीजिंग बाई 20%, 20% यानी कि 1/5, तो अगर p इनिशियली 5 था तो नाउ p 6, तो q अगर पहले 6 रहा होगा तो अब 5 हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तभी तो कांस्टेंट होगा, 30 से 30 रहा। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू पहले होगा, अगर क्यू पहले 6 यूनिट्स होगा तो नाउ इट विल बी 5 यूनिट्स, यानी कि देयर विल बी डिक्रीज ऑफ 1 यूनिट ऑन बेस 6, तो 16.66% का डिक्रीज आएगा। ओके, यही सेम चीज़ हम प्रोडक्ट की वैल्यू से भी देख सकते थे कि पी इंटू क्यू पहले था, बाद में पी हो गया है 6p/5, क्यू मान लेते हैं क्यू डैश हुआ है, पी से पी कैंसिल आउट हो गया, क्यू डैश हो जाएगा हमारा 5q/6, तो क्यू डैश बाई क्यू दिस इज इक्वल टू 5/6, तो क्यू पहले अगर 6 था तो 6 से हो गया 5, 1 का डिक्रीज आया 1/6 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what must be subtracted from 15, 17, 20 and 23 such that the new numbers become in a proportion, तो एक ही नंबर हम सारे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, such that new numbers will be in proportion, there are 4 numbers, so let us say x is the number that we are subtracting, 15 minus x upon 17 minus x, that will be equal to 20 minus x upon 23 minus x। अब इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट ऑप्शंस को यूज कर लो, तो ऑप्शन अगर 5 पुट करते हैं तो 15 माइनस 5 विल बी 10, 17 माइनस 5 विल बी 12, तो 10/12, और आर एच एस क्या आ जाएगा, 20 माइनस 5 15, 23 माइनस 5 18, 10/12 इज 5/6, 15/18 इज ऑल्सो 5/6, तो यस यही हमारा आंसर होगा कि x मस्ट बी इक्वल टू 5। अगर 5 नहीं आता तो दूसरी वैल्यू डाल के पुट करके चेक करते। ओके, ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अप्रोच, बट एक और अप्रोच है जो इससे भी ईजी है, वो कैसे होगा, देखो हमें नंबर्स गिवन है 15, 17
20 एंड 23. ओके, अब 15 और 17 के बीच का गैप क्या है हमारा? दिस गैप इज इक्वल टू 2 एंड गैप बिटवीन 20 एंड 23 दिस इज इक्वल टू 3. गैप हमारा पहले वाले केस में 2 है और सेकंड वाले केस में 3 है. अब क्योंकि अल्टीमेटली सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमारा रेशियो सेम ही आने वाला है, तो यहाँ पे डेफिनेटली फिर हमारा 15 और 20 का जो रेशियो है दैट मस्ट बी 2/3. क्यों होगा लॉजिक समझेंगे अभी. बट 15 और 23 यानी कि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद में 15 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स दिस विल बी इक्वल टू 2/3. और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो डिफरेंस है वो तो चेंज नहीं होगा ना. डिफरेंस जो पहले रहा है वही बाद में रहेगा. ठीक है, डिफरेंस तो चेंज नहीं होगा 15 और 20 के बीच का. क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम दो नंबर्स में से 3 सब्ट्रैक्ट करें, 15 माइनस 3 विल बी 12, 20 माइनस 3 विल बी 17. डिफरेंस बाद में ही 5 रहेगा क्योंकि सेम ही नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो इफेक्टिवली जो 2 यूनिट्स और 3 यूनिट्स है बीच में जो 1 यूनिट है ये क्या है? डिफरेंस है. दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 यानी कि न्यूमरेटर हमारा 10 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 15 हो जाएगा. तो यानी कि x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा. फिर से रिपीट करता हूँ, 15 17 के बीच का गैप आया 2, 20 23 के बीच का गैप आया 3 यानी कि 15 माइनस एक्स और 20 माइनस एक्स का जो रेशियो होगा दैट विल बी 2/3. और क्योंकि हमारा गैप चेंज नहीं होगा, दोनों में हम सेम ही नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये तभी अप्लाई होगा जबकि सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है ऑब्वियसली. ठीक है, तो सेम ही नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्लियरली जो डिफरेंस है हमारा वो सेम ही रहेगा. ठीक है, और अल्टीमेटली हमारा 2/3 का रेशियो आ रहा है 15 और 20 का आफ्टर सब्ट्रैक्शन. आफ्टर सब्ट्रैक्शन 15 माइनस एक्स बाई 20 माइनस एक्स, तो जो बीच का गैप है 2 और 3 का दैट इज 1 यूनिट. तो दैट 1 यूनिट विल बी डिफरेंस ऑफ 15 माइनस एक्स 20 माइनस एक्स विच विल बी इक्वल टू 5. 1 यूनिट 5 है, 2 यूनिट 10 होगा. 15 माइनस एक्स 10 आ गया यानी कि एक्स विल बी इक्वल टू 5. यही सेम काम हम 17 और 23 में भी कर सकते थे. इस 17 माइनस एक्स बाई 23 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 2/3. डिफरेंस आया 1 यूनिट का और 1 यूनिट इक्वल टू 6 होगा. तो 1 यूनिट 6 है यानी कि 2 यूनिट 12 आ जाएगा, 3 यूनिट 18 आ जाएगा. तो एक्स इक्वल टू 5 यहाँ से निकालो. क्लियर है? अब ऐसा क्यों हो रहा है वो समझ लेते हैं शॉर्ट में. ठीक है, अगर 15 और 17 को, क्योंकि गैप यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे गैप 3 का है, तो वी कैन से दैट a अपॉन a प्लस 2. ठीक है, a अपॉन a प्लस 2 दिस इज इक्वल टू b अपॉन b प्लस 3. सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी गैप तो 2 का ही रहेगा. ठीक है, सो दीज आर इक्वल. यही तो है, यही तो हो रहा है अल्टीमेटली, है कि नहीं? जब हम लिख रहे हैं 15 माइनस एक्स अपॉन 17 माइनस एक्स तो उसको लिख सकते हैं 15 माइनस एक्स प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स प्लस 3. तो वही हो गया a अपॉन a प्लस 2 दैट इज इक्वल टू b अपॉन b प्लस 3. ठीक है, अब हम इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं. a प्लस 2 अपॉन a दिस इज इक्वल टू b प्लस 3 अपॉन b. ओके, a प्लस 2 अपॉन a इक्वल टू b प्लस 3 अपॉन b. अब a बाई a 1 हो जाएगा तो दिस विल बी 1 प्लस 2 अपॉन a लेफ्ट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड में हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई b. 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया तो बच गया 2 अपॉन a इज इक्वल टू 3 अपॉन b. और यहीं से आ गया हमारा a अपॉन b इज इक्वल टू 2/3. क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ x वेरीज इनवर्सली एज y एंड x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 600, तो y का वैल्यू क्या होगा व्हेन x इज इक्वल टू 400? x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होगा. तो फर्स्ट केस से हमें x इंटू वाई का वैल्यू मिल जाएगा. 20 इंटू 600 है, दैट विल बी इक्वल टू, सेकंड केस में x का वैल्यू 400 है, y का वैल्यू y मान लेते हैं, तो यहाँ से y मिल जाएगा 20 इंटू 600 बाई 400. तो 600 बाई 20 यानी कि 30 विल बी आवर आंसर. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. x is directly proportional to 4 more than square of y. x is 39 when y is 3. So what is the value of root of y when x is 60? x is directly proportional to 4 more than square of y. यानी कि x is proportional to y square plus 4. तो x will be equal to some constant, let us say that is equal to k into y square plus 4. गिवन है हमें x 39 है जबकि y 3 है, तो x is equal to 39 when y is equal to 3 यानी कि k into 3 square plus 4. तो दैट विल बी 13k. तो 13k is equal to 39, तो यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगा, k will be equal to 3. So we have to find the value of the square root of y when x is 60. So if x is equal to 60, तो 60 is equal to k into y square plus 4. k is equal to 3 है, 3 into y square plus 4. तो y square plus 4 will be equal to 60 by 3 which is 20.
वाई स्क्वायर आ गया इक्वल टू 16. सो वाई विल बी इक्वल टू 4. और क्वेश्चन पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ वाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई विल बी इक्वल टू 2. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. x varies inversely as 2y square minus 5 and is equal to 25 when y is equal to 15, then find approximate value of x when y is equal to 10. x inversely vary करता है as 2y minus 5 यानी कि x into 2y square minus 5, this is equal to constant. And x is equal to 25 when y is equal to 15, तो approximate value of x क्या होगा जबकि y equal to 10 है. तो पहले वाले केस में x हमारा 25 है, y 15 है, तो x 25 इंटू 2 इंटू 15 स्क्वायर माइनस 5. सेकेंड केस में y 10 है और x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो लेट अस से x इज इक्वल टू x. ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान रखना x नहीं है. तो x मल्टीप्लाइड बाई y यानी कि 2 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 5. सो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 2 450 माइनस 5 445 एंड दैट इज इक्वल टू x इंटू 200 माइनस 5 195. 5 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस विल बी 39 एंड दिस हेयर विल बी 89. So x comes out to be 25 इंटू 89 अपॉन 39. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा यहाँ से. ठीक है, सो 89 39 से 2 टाइम्स जाएगा 78 और 11 बच जाएगा. तो वी कैन राइट दिस एज 25 इंटू 78 प्लस 11 अपॉन 39. ठीक है, सो 25 इंटू 2 प्लस 11 बाई 39, तो 50 प्लस 25 इंटू 11 275, 50 प्लस 275 बाई 39, तो 40 से रफली 7 टाइम्स जाएगा. तो आंसर हमारा 50 प्लस 7 रफली 57 होगा. अप्रॉक्सीमेटली ऑप्शन ए 57 विल बी द आंसर. ओके, क्लियर है बात? सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, फ्रॉम द टॉपिक ऑफ प्रोपोर्शंस इन प्रीवियस ईयर्स इन एसएसजीबीओ एग्जामिनेशन. इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया वो सारी बातें समझ में होंगी. किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रहा हो तो कमेंट जरूर मेंशन करना, और ऑल्सो लाइक दिस सेशन अगर सेशन पसंद आया तो. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.